انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگراں وزیر اعظم بن گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگراں وزیر اعظم تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 224(1)(ا) کے تحت تعیناتی کی منظوری دی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں آج نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کا دوسرا دور ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ریاض نے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کی تصدیق۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بطور پارٹی صدر نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ریویو اینڈ ججمنٹ اقبال عدم قرار دینے کے فیصلے سے نواز شریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قانون کے ذریعے نااہلی کی مدت کا تعین 5 سال کیا جا چکا ہے۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، چین سے بہترین تعلقات استوار کیے، مگر پچھلے الیکشن میں نواز شریف کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا۔ یوم آزادی منانے کے صرف 2 دن باقی، بہاولپور کی شہری پرجوش جشن آزادی دھوم دھام سے منائیں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ساتھ جھنڈے، ٹی شرٹ، بیجز خریدنے کے لیے مختلف اسٹالز پر خریداری میں مصروف ہیں۔ اوکاڑہ میں فیصل آباد روڈ کھنگرا والا پل کے قریب کار رکشے میں تصادم، حادثے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت منصف کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش اسپتال منتقل کر دی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پتوکی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، تھانہ صدر پتوکی پولیس کی کامیاب کارروائی، 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائی ایس ایچ او حافظ عاطف نے ٹیم کے ہمراہ کی۔ ملزمان کی قبضے سے ٹریکٹر، نقدی، 8 موبائل فون اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ملتان روڈ اور اس کے لنک روڈ پر راہگیروں سے وارداتیں کرتے تھے۔ ڈی پی او قصور نے اچھی کارکردگی پر تھانہ صدر پتوکی پولیس کو شاباش دی۔ پاک پتن چوک شمال کے قریب ڈاکوؤں کا بسکٹ کی نجی کمپنی پر دھاوا، لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ کوہنور نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ انجمن اتحاد کے رہنما چودھری عبدالکریم قومی کی ملٹی نیشنل برانڈ ایجنسی کے ملازمین کو تیار و مال بنا کر ڈاکو 5 لاکھ سے زائد نقدی لے کر مزاحمت پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اوکاڑہ میں چوک پر پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ASI شدید زخمی، مارے گئے ڈاکو کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ASI نیوز سمجھ کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کھوکھر والا کنوال کے قریب ڈاکو ناکہ لگ کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کی موبائل گاڑی معمول کے مطابق گشت کر رہی تھی۔ ڈاکو نے اہلکاروں کو دیکھتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ ڈی پی او منصور امان نے ہسپتال میں زخمی ہونے والے ASI کی عیادت کی۔ اور سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بہار درمیانہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت شفیق کے نام سے ہو گئی۔ شفیق کچھ دن قبل اسپین سے واپس آیا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واک کر رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے گولیاں مار دی۔ لاش کی ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि गुलशन इकबाल गैर कानूनी तामीरात बिल्डर्स माफिया के लिए जन्नत नसीब बनी हुई है। रहनुमा जमात इस्लामी सैयद कुतुब अहमद का कहना था कि इलाके में गैर तामीरात सरकारी सरपरस्ती भी जारी है। तामीरात में मुलविस सरकारी एहलकारों को बरतरफ करके गिरफ्तार किया जाए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। गुलशन इकबाल UC2 जौहर पार्क में दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमायत इस्लामी के रहनुमा सैयद कुतुब अहमद का कहना था कि गुलशन इकबाल UC2 बलोच गोट और मुल्हिका इलाकों में सरकारी सरपरस्ती में गैर कानूनी कसीर मंजिला तामीरात जारी है। बिल्डर माफिया मकीनों को दबाने के लिए उन पर झूठे मुकदमात बनाकर उनकी आवाज दबाना चाहती है। उनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इलाका मकीन पहले ही हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। वो केस जेर समात है, उसके बावजूद तामीरात जारी है। सिंध हुकूमत तामीरात में मुलविस एहलकारों को बरतरफ करके गिरफ्तार करे। रहनुमा जमायत इस्लामी ने मजीद कहा कि जमायत इस्लामी इलाका मकीनों की इस जदोजहद में उनके साथ खड़ी है और हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए अदालत से रुजू करते रहेंगे। आबादी के लोग हैं, उन्होंने कोई इदारा ऐसे नहीं है जिसको अप्रोच ना किया हो, जिसमें SBCA भी मौजूद है, इसमें DCE साहब भी मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं कि किसी के कहते हैं कि कान के ऊपर जूंग लिखने को तैयार नहीं है, कि वो ये समझते हैं कि पैसे के जरिए से वो सबको खरीद सकते हैं, वो किसको चाहेंगे वो कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि कराची की आवाम अब उनके धोखे में नहीं आएगी। अब उनके पैसों के खिलाफ वो जो है ना खड़ी होगी, उनके खिलाफ उनके तमाम चीजें, जो अच्छे लोग काम करने वाले, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि वो एक हुकूमतदारी करती है स्टे ऑर्डर की, और ना पुलिस उसको फॉलो कर रही है, ना SBCA उसको फॉलो कर रहा है, ना कोई और सिंध गवर्नमेंट के इदारा जो है उसको फॉलो करने तैयार है। और कोटरी साइड सनती जोन में रोजगार के हवाले से मुकामी अफराद को नजरअंदाज करने पर मकीनों का शदीद एहतजाज है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई। समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार लहर, नजीर बलेदी, शहबाज मेमन का कहना था कि कंपनियों में न सिर्फ मुकामी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि दीगर शहरों से आने वाले अफराद को मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं। फौरी नोटिस दिया जाए वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड खंगरावाला पुल के करीब रिक्शे में तसादुम हुआ। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शिनाख्त मनसब के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड खंगरावाला पुल के करीब कार रिक्शे में तसादुम हुआ। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शिनाख्त मनसब के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा खुराक और महकमा लाइफ स्टॉक की चेक पोस्ट स्वात पर मुश्तरका कार्रवाई हुई। ट्रकों से 800 लीटर मुसरे सेहत दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया और भारी जुर्माने आयद किए गए। इस दौरान कई दूध फरोशों को वार्निंग भी जारी की गई। हुकाम का कहना था कि हम किसी को शहरियों की सेहत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। शहरियों की शिकायत का फौरी हल अवलीन तरजीह है। आपको बताते चले इस हवाले से कि महकमा खुराक और महकमा लाइफ स्टॉक की चेक पोस्ट स्वात पर मुश्तरका कार्रवाई हुई। ट्रकों से 800 लीटर मुसरे सेहत दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया और भारी जुर्माने आयद किए गए। इस दौरान कई दूध फरोशों को वार्निंग भी जारी की गई। हुकाम का कहना था कि हम किसी को शहरियों की सेहत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। शहरियों की शिकायत का फौरी हल अवलीन तरजीह है। आजादी एक बड़ी नेमत है। सिंधा कौमें अपनी आजादी का दिन खूब धूमधाम तरीके से मनाती है। लकी मरवत में भी यौम आजादी की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया और महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों के तुलबा के माबैन मिली नगमों और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शरीफुल्लाह खान।
آزادی ایک بڑی نعمت ہے. زندہ قومیں اپنی آزادی کا دن دھوم دھام اور ملی جوش و جذبے سے مناتی ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں بھی یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا. ڈپٹی کمشنر لکی مروت عبدالہادی اور ڈی او محمد الیاس خٹک کی ہدایات پر گورنمنٹ شہید محمد غسان خان سینٹینیل ماڈل ہائی اسکول میں منعقدہ مقابلوں کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر یاسر نذیر نے کی. مہمان خصوصی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر احسان اللہ تھے، جبکہ صدارت وائس پرنسپل خلیل الرحمان نے کی. تقریری مقابلے میں گورنمنٹ شہید محمد غسان خان سینٹینیل ماڈل ہائی اسکول نمبر 1 لکی سٹی کے طلبہ محمد حمزہ اور محمد جبران نے پہلی، گورنمنٹ ہائی اسکول حرامہ تالہ کے محمد بوستان نے دوسری اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 لکی کے عبداللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی. ملی نغموں کے مقابلے میں شہید محمد غسان خان سینٹینیل ماڈل ہائی اسکول نمبر 1 لکی سٹی کی پارٹی اول آئی، جبکہ گورنمنٹ پرائمری اسکول باغبان کی پارٹی نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اے ڈی او ڈاکٹر احسان اللہ خان نے پوزیشن ہولڈر اور مقابلوں میں شریک طلبہ میں نقد اور انعامات تقسیم کیے. رتو ڈیرو کا نواحی گاؤں سہولیات سے محروم ہے. رہائشیوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے اور خوب نعرے بازی کی گئی ہے. شبان، فریدہ خاتون، رسیہ بیگم، ساجد انٹر، رقیہ زمیران، عجائب خاتون سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ آج بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس جدید دور میں نہیں بلکہ جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی. پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج نظام. 1 سال سے گاؤں کی بجلی بند ہے. بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا. مظاہرین نے حکام سے مطالبہ کر دیا. ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ کی ہدایت پر ایس ایچ او غوث پور اختیار ناریشو اور اسپیشل ٹیم کا کچے کے علاقے میں آپریشن ہے. 2 مخفیوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا. بازیاب ہونے والوں میں بگن لاڑو کا رہائشی جان محمد، شکارپور کا زہیب شیخ شامل ہے. اغوا کار فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. پتوکی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. تھانہ صدر پتوکی پولیس کی کامیاب کارروائی ہوئی. 3 رکن ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا گیا. کارروائی ایس ایچ او حافظ عاطف نے ٹیم کے ہمراہ کی. ملزمان کے قبضے سے ٹریکٹر، نقدی، 8 موبائل فون اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ملتان روڈ اور اس کے لنک روڈ پر راہگیروں سے وارداتیں کرتے تھے. ملزمان نے پتوکی اور اس کے گردنواں میں سنگین وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا. دوران تفتیش ڈکیتی اور رابری کی 8 سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا گیا ہے. مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے. ڈی پی او قصور میں اچھی کارکردگی پر تھانہ صدر پتوکی پولیس کو شاباش دی. پاک پتن چوک شمال کے قریب ڈاکوؤں کا بسکٹ کی نجی کمپنی پر دھاوا. لاکھوں روپے نقدی لوٹ لی. کوہنور سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے. انجمن تاجران کے رہنما چودھری عبدالقیوم قومی کی ملٹی نیشنل برانڈ ایجنسی کے ملازمین کو یرغمال بنا کر ڈاکو 5 لاکھ سے زائد نقدی لے اڑے. مزاحمت پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. ڈی ایس پی صدر سرکل موقع پر پہنچ گئے. تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیے. ڈاکوؤں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا. اوکاڑا میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے ارتباط میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا. اے ایس آئی شدید زخمی. مارے گئے ڈاکو کے ساتھ ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھانے والے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اے ایس آئی نور سمند کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کھوکھر والا کوال کے قریب ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس کی موبائل گاڑی معمول کے مطابق گشت کر رہی تھی. ڈاکوؤں نے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی. فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی. ڈی پی او منصور امان نے ہسپتال میں زخمی ہونے والے اے ایس آئی کی عیادت کی. سیالکوٹ شہر کے مختلف بازاروں میں جھنڈے جھنڈیاں بیجز کے مختلف سٹال سج گئے ہیں. شہر بیٹریوں کے ساتھ خریداری کے لیے تو آ گئے لیکن
महंगाई ज्यादा होने की वजह से हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते दिखाई दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भट्टी। में अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर के गली कूचों में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर इकबाल के बासी भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारी में मगन है। जिला भर के मेन शहरात पर कौमी परचमों, झंडियों, बाजों और बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। मजे की बात यह है कि वहीं फेस पेंटिंग, टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर है। बच्चे कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाना मिली जोशो जज्बे का बरमला इजहार है और साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी। मियानी में जामिया मस्जिद शेखावाली में शोहदाए करबला और जिक्र नात का एहतमाम किया गया। सदारत हाफिज कारी मोहम्मद सनाउल्लाह ने की। कारी अब्दुल मनान उमैर कादरी ने हदिया अकीदत पेश किया। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अशरफ मियानवी ने शोहदाए करबला की शान और कुर्बानियों पर तफसीली बयान किया। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में लंगर का भी एहतमाम किया गया। आपको अपडेट करते चले साहम खबर के हवाले से कि मियानी में जामिया मस्जिद शेखावाली में शोहदाए करबला और जिक्र नात का एहतमाम किया गया। सदारत हाफिज कारी मोहम्मद सनाउल्लाह ने की। कारी अब्दुल मनान उमैर कादरी ने हदिया अकीदत पेश किया। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अशरफ मियानवी ने शोहदाए करबला की शान और कुर्बानियों पर तफसीली बयान किया। अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में लंगर का भी एहतमाम किया गया। सराय आलमगीर के नवाही गांवों बेहार दरमियाना में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त शफीक के नाम से हो गई। शफीक कुछ दिन कबल स्पेन से वापस आया था। नमाज फजर की अदायगी के बाद वॉक कर रहा था कि नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि सराय आलमगीर के नवाही गांव बेहार दरमियाना में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त शफीक के नाम से हो गई। शफीक कुछ दिन कबल स्पेन से वापस आया था। नमाज फजर की अदायगी के बाद वॉक कर रहा था कि नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम आजादी मनाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। भावलपुर के शहरी पुरजोश हैं। शहरियों का कहना था कि हम बच्चों के साथ झंडे, टी शर्ट, बैजेस खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ अमल है ताकि जश्न आजादी धूमधाम से मनाएं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। क्षेत्रीय 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाने के लिए भावलपुर के शहरी पुरजोश। जश्न आज़ादी में 2 दिन बाकी। भावलपुर के शहरियों ने कहा हम बच्चों के साथ झंडे, टी शर्ट, बैजेस खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल पर खरीदारी में मसरूफ हैं ताकि जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाएं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जी मेरा ये मैसेज इस मुल्क के पाकिस्तान के हर एक अजीज शहरी के लिए है कि हम एक आज़ाद कौम है और आज़ादी का जश्न हम धूमधाम से मनाएंगे। भले कि हम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इस दिन 14 अगस्त को मनाने के लिए अपने बच्चों के लिए मैं झंडियाँ, पाकिस्तानी कौमी परचम और बैजेस खरीदने आया हूँ ताकि हमारी नस्लों को ये पैगाम पहुँचा सकें कि इस मुल्क को बचाने के लिए कितनी जानों की कुर्बानियाँ दी गई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हमारे बड़ों ने ये बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको आज़ाद करवाया था और हमें सब लोगों को चाहिए, हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि बड़े जोश व खरोश से ये जश्न आज़ादी को मनाएं। अभी मैं ये झंडा और बैज वगैरह ख़रीदने के लिए आया हूँ और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन जश्न आज़ादी मनाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी कदर करना, इस मुल्क की प्लीज़ कदर करें
और ख़ास तौर पे मेरा जो पैगाम है वो यंग जनरेशन के लिए है। 14 अगस्त पे बाइक पे वन व्हीलिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, बाजे बजाते हैं, तो बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को खो बैठती हैं। तो वन व्हीलिंग करते हैं, उनकी बाज की डेथ हो जाती है, कोई किसी की टांग टूट जाती है। तो मेरी तमाम यंग जनरेशन से गुजारिश है कि प्लीज़ ये काम ना करें। रिपोर्ट आपने मुलायसा के आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि गीगा और एपका यूनियन के मुतालबात की मंजूरी के बाद सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और चेयरमैन अगीगा की हिदायत पर पंजाब भर की तरह बिहाड़ी में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। चेयरमैन अगीगा असरा अब्दुल हई, सदर अगीगा मुनव्वर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी ताहिरा अलवी, करामत अली, सईद कंवल, असरा यास्मीन समेत दर्जनों ओहदेदारों ने शिरकत की। एपका के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इसहाक, चेयरमैन एपका चौधरी आबिद अली घुमन, सदर एपका आसिफ घुमन, फैजुल हक ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत से मुतालबा किया कि लीव इंकेशमेंट का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लें, वरना मुलाजमीन अपने मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पंजाब को बंद कर देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई गई। खानका डोगरा में म्यूनिसिपल कमेटी के जेरे एहतमाम स्मोक से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें बल्दिया और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसी सफदराबाद अयूशा जफर ने वॉक की क़यादत की। वॉक में बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैयब शाकिर, राना असफर और जाहिद समेत सेंट्री वर्करों और दीगर एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने स्मोक आगाही बारे बैनर्स उठा रखे थे। वॉक म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू होकर लाहौर सरगोदा रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि बहैसियत जिम्मेदारी शहरी अपना अपना फर्ज अदा करें तो स्मोक से बचा जा सकता है। आपको आगाही वॉक के हवाले से अपडेट करते चले कि खानका डोगरा में म्यूनिसिपल कमेटी के जेरे एहतमाम स्मोक से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें बल्दिया मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसी सफदराबाद अयूशा जफर ने वॉक की क़यादत की। वॉक में बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैयब शाकिर, राना असफर और जाहिद समेत सैनिटरी वर्करों और दीगर एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी असम्बली ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर ली। 2 हुकूमतें आई, लेकिन अवाम के लिए मसाइल बढ़ते ही रहे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई। इस हवाले से शहरियों ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद अहमद। जी शहजाद, बताइएगा। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां आम शहरी परेशान हैं, वहां ताजर भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। जलालपुर पीरवाला में ताजर बरादरी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के भारी बिल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजर बरादरी ने प्लेट कार्ड और बैनर उठा रखे थे। इस मौके पर ताजर बरादरी की जानिब से साबका हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे चली गई है। रोज़ रोज़ बिजली की बढ़ती कीमतों ने, पेट्रोल की कीमतों ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हुआ है। अब दाल, चीनी, घी, चावल, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गरीब की पहुंच में रह गई हो। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, गुजारिश है कि मेहरबानी करें और इन कीमतों को सही सिमत में लेकर आएँ और मुल्क को दोबारा से उन्हीं रोशनी और खुशियों का मुल्क बनाएं। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब आवाम इन्हें गिरेबानों से पकड़कर तपती हुई सड़कों पर धूपों में लिटाएंगे और इन लोगों से अपने दुखों का मदावा करेंगे। क्या कैद आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है? वो तो गरीबों का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर चाहते थे। यहाँ तो गरीबों का जीना दो भर कर दिया गया है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीब कहाँ जाए? वो हिजरत भी नहीं कर सकते दोबारा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है, अल्लाह ताला का प्यारा मुल्क है। जिस तरह मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला का प्यारा शहर है, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था। वहाँ तो ज़कात देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। यहाँ तो हर कोई महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हर कोई चीखें निकल रही है अवाम की। ये हुक्मरानों ने क्या किया है? 15 महीनों में इन्होंने क्या किया है? ये सेहरे तो पहने थे इन्होंने, लेकिन अवाम के दुखों का मदावा इन्होंने नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट इक़्तिदार संभाले,
फौरन आवाम को रिलीफ दे और आवाम के दुखों पर मरहम रखे। रैली गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मुल्तान रोड से शुरू होकर अल्लाह वाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में ताजरों की कसीर तादाद शरीक थी। कैमरा टीम के साथ नारंग मंडी में खुदसाख्ता महंगाई का तूफान न थम सका, अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुब्तला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना ते साडा है ना आवाम दा है। किहड़े पासे जाइए असीं? मर जाइए या मार दो। एटम जेड़ा गिरवी रख रहे हो वो साडे ते चला दो। हरिपुर में योम आज़ादी के मौका पर पहली बार खवातीन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और TM ने सकाफती मेले का इनेकाद किया। मेला सिर्फ खवातीन के लिए 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें खवातीन ने मुख्तलिफ दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट और दीगर स्टॉल्स लगाए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद से। जी राशिद, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिपुर में 14 अगस्त के हवाले से पहली मरतबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और TM ने मुश्तरका आज़ादी मेले का इनेकाद किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब स्वाति साहब, साथ साजिद नसीम साहब हैं, बाकी अहदेदार भी मौजूद हैं। इस वक्त हम इनसे बात करते हैं तैयब स्वाति साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये ख्वाब मेरे साथियों ने जब मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमने ख़वातीन को घरों से निकाला जो घरों में काम कर रही थी, ताकि उनके ये हरिपुर की ख़वातीन और फैमिलियाँ आएँ, इनके काम को देखें, इनकी ख़रीदारी करें। इस्लामाबाद पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है और इनकी हौसला अफजाई करें। और इंशाअल्लाह वो मैन हमारी जो इनके अंदर टैलेंट है वो उभर के निकल गया है, इनमें बच गया है, जो IT का भी काम करती हैं और अपने घरों में काम करके उन्होंने ये स्टॉल लगा दी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी फैमिलियां भी हैं जो ये बात सुन रही हैं, ये जिनको पता है, वो आके इन लोगों की हौसला अफजाई करें कि उनमें ऐसे लोग भी हैं वो जो बिल्कुल कोई जो है ना जी कैंसर का मरीज़ है वो काम कर रहा है, कोई यतीम है बच्चियाँ वो अपनी जो है ना जी हैंडमेड पे काम कर रही हैं। हम उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। बेवा औरतें हैं, ऐसी औरतें भी हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर सकती हैं लेकिन वो भी हिम्मत कर रही हैं। हमारा काम है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और इस काम को हम प्रमोट करें। मेरी बिल्कुल यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स तैयब स्वाति साहब से भी बात हुई है, सदर साहब से भी और साजिद नसीम साहब से भी बात हुई है और चेयरमैन तहसील नाज़म साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मतलब है मीना बाज़ार में मुख्तलिफ चूड़ियाँ लगी हुई हैं, हैंडीक्राफ्ट लगे हुए हैं और ख्वातीन। खबर शामिल करें पतोकी से, जहां डिप्टी एजुकेशन ऑफिस में 14 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील भर के एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स की तालिबात के दरमियान तकरीरी, आर्ट और मिली नकलों के मुकाबला जात का भी इनेकाद हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ सईद। की गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फैसल कॉलोनी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खुसूसी प्रोग्राम में तहसील भर के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की तालबात के दरमियान मुकाबला, हुस्न तकरीर, उर्दू व इंग्लिश, ड्राइंग और मिली नगमों के मुकाबला जात हुए, जिसमें स्कूल्स की तालबात ने जश्न आज़ादी के मौजू पर तकारीर और मिली नगमे पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। खुसूसी तकरीब की सदारत डिप्टी एजुकेशन मैडम सरैया फारूक ने की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद ने तालबात से खुसूसी खिताब करते हुए कहा, मेरी बहनों, बच्चियों, अल्लाह ने हमें ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे दिया, तो आप लोगों को भी
चाहिए कि इसकी तालीमात अल्लाह के बताए हुक्म के मुताबिक चले। अपने खिताब के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों राना अमजद ने जश्न आज़ादी के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज करने पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैसल कॉलोनी मैडम सोफिया कुलसूम और महकमा एजुकेशन तहसील पत्तों की तमाम एईओज को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ मियां आसफ सईद। ख्वाजा सराओं की खरीदो फरोख्त, जबरी गुलामी और तशद्दुद मुआशरे का बड़ा मसला। कम्युनिटी ने ख्वाजा सराओं की खरीदो फरोख्त और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद। रावलपिंडी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा सरा की खरीद फरोख्त और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इंडस होम और चेयरपर्सन सबा गुल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे नोटिस लें और हरकत में आए ताकि इस धंधे को बंद किया जा सके। किस तरह हमारे ख्वाजा सराओं को हक्का पानी बंद किया जाता है, किस तरह उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किए जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तमाम इदारों से यही रिक्वेस्ट है, यानी कि हुक्का पानी जसीर लोग बंद करते हैं और हमारी कम्युनिटी को और उस तरफ लेकर आओ जहाँ स्किल सिखाए जाएँ, जहाँ हुनर सिखाए जाएँ। उन्हें तालीम याफ्ता करना ज़रूरी है, उनको दीन की तरफ लाना ज़रूरी है। जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल तरीके से जो पब्लिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं चाहती हूँ उसी तरह मेरी ख्वाजा सरां कम्युनिटी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। ख्वाजा सराओं का कहना था कि आज का हमारा एहतजाज करने का सिर्फ यही मकसद था कि गुरु कल्चर को ख़त्म किया जाए। सादकाबाद में राहगीर खातून को हिरासा करने का ये मामला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ ने नोटिस ले लिया। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम के चेहरे की शिनाख्त की जा रही है। तमाम तर वसाइल को बिरोएकार लाते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुस्लिम मुआशरे का नासूर है, गिरफ्तार करके अदालत से करार वाकई सजा दिलवाएंगे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तांदियावाला में बीएचयू चक नंबर 427 सेहत अफसरान की नजरों से बिल्कुल ओझल है। बीएचयू के रिहायशी क्वार्टर्स भूत बंगला में तब्दील हो गए। क्वार्टर्स के इतराफ की जगह जंगल का नजारा पेश करने लगी। कई फुट लंबी घास डेंगू की अफजाइश का जरिया बनने लगी। वकीलों का कहना था कि अफसरान ने कभी क्वार्टर्स की सफाई सुथराई की तरफ तवज्जो नहीं दी। लाखों रुपए लागत के क्वार्टर्स तबाह हो रहे हैं। जंगल को खत्म करके प्लांटेशन की जाए। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत से नोटिस देने की अपील कर दी। यौम आजादी पर अमन अमान के लिए शनियोर में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। पुल दरिया शनाब, दोस्त मोहम्मद लाली पुल और दीगर मकामात पर 500 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डीपीओ शनियोर का कहना था कि एसएचओज अपने अपने इलाकों में गश्त करके अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखेंगे। एलीट फोर्स और फॉल्कन स्क्वाड की टीमें शहर और गिरदनवा में गश्त पर मामूर होंगी। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो अहम पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। यौम आजादी पर वन व्हीलिंग, बगैर साइलेंसर के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरियाए शनाब में नहाने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक को रवादवा रखने के लिए मरबूत ट्रैफिक प्लान तश्कील देकर ट्रैफिक अमला तैनात किया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में दीपालपुर रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 अफराद मौका पर जान की बाजी हार गए। खातून समेत शदीद जख्मी हो गई। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ट्रक अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। एसएसपी जामशोरों की हिदायत पर एसएचओ कोटरी सब इंस्पेक्टर नासिर नवाब पठान की कार्रवाई। मनशियात की स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया। कोटरी के बीफ फीडर के करीब 3 मनशियात के स्मगलर्स इरफान, हलीमान, जीनत को
गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 24 किलोग्राम मेन पुरी में इस्तेमाल होने वाला चूरा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नोडेरो की शाही बाजार में कपड़े की दुकान में सर्कल शॉट के बायस आग लग गई। आतिशज़दगी से रेडीमेड कपड़े झुलस कर खाकस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड अमला ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मजीद नुकसान होने से बचा लिया। मालिक महबूब चना का कहना था कि 3 लाख मालियत का रेडीमेड कपड़ा झुलस कर तबाह हो गया। पीपल्स पार्टी की 5 साला दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर होने पर जमात इस्लामी की जानिब से कराची से कश्मीर तक यौम निजात मनाया गया। जमात इस्लामी कश्मीर के कायम मकाम अमीर अफजल अता कलोर, जुल्फिकार मलिक, वजीर अहमद चन्ना, न्याज सोलंकी और धनी बख्श नसीरानी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने यौम निजात एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साला दौरे इक्तदार में महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी के सिवा अवाम को कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 5 साल के दौरान सवा लूट मार करप्शन के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने वजीरों और मुशीरों को नवाजा। सिंध के किसान मजदूर नौजवान बासी आज भी रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम है। कराची से कश्मीर तक पूरी सिंध खंडरात का मंजर पेश कर रही है। खिपरों में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों ने सर्वर 9 चौक में जमा होकर नारेबाजी की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रजाक राजपूत। खिपरों में भी पूरे मुल्क की तरह बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सरवर 9 चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत उस्मान कुमार, मोहम्मद हुसैन तुर्क, चेतन भील, मुमताज बलोच, खमीसो राजड़, अनवर अली कुमार और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में झंडे और पेना फ्लैक्स उठाए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें गरीबों का जीवन जंजाल हो गया, गरीब आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जानब से आज पूरी सिंध में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, तो हम अपने तहसील खिपरों में इस गरीब आवाम के साथ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है तो घी का रेट, आटे का रेट और डीजल पेट्रोल का रेट घटाकर गरीब आवाम को जीने का हक दो। तो इन महंगाई के खिलाफ जो असांजो हिते एहतजाज है सरवरी चौक ते जो अटे जो अघु जो हींअर 6000 रुपया मन लगो पियो आहे, जे घी जो 600 रुपया किलो लगो पियो आहे, जे खंड आहे तो 150 रुपया किलो लगो पियो आहे। इंसान जे जीअण जो हक़ खसे छॾियो आहे। इन करे असीं चऊं था तो खुदारा हिन माण्हुनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। महंगाई के हिसाब से जो भी लोग इस मरले में जो पहुंच रहे हैं, अभी अपनी दुनिया में खुदकुशी कर रहे हैं और महंगाई की वजह से को आपघात कर रहे हैं। हम इतला करते हैं गवर्नमेंट से जो महंगाई खत्म कर दिए। इनका मजीद कहना था कि जल्द से जल्द बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, वरना एहतजाजी मुजाहरों का दायरा वसी किया जाएगा। नवाबशाह में शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के तलबा की यौम आज़ादी के मौका पर हफ्ता सरसब्ज़ सिंध मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यूनिवर्सिटी और इसके इतराफ में हजारों दरख्त लगाए जाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली ने दरख्त लगाकर सरसब्ज़ सिंध शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल फताह रिंद। उमरकोट की तहसील कुल्ली में सिंधी अदबी संगत की जानिब से पाकिस्तान की आज़ादी और इसमें हर तहरीक के किरदार पर सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद हुआ। अदबी संगत के रहनुमाओं और हर जमात के मुरीदीन, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका में अकबर मेमन, अयूब गशकोरी, गाजी मुख्तियार, सुहेल खोसा, एतजाज खलील शामिल थे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त मुर्शिद करीम की एक आवाज पर हजारों अपने सिरों पर कफन बांध कर अपनी जानों के नजराने पेश किए जा रहे थे। तहरीक शोहदा की कुर्बानियों को ताहयात याद रखा जाएगा।
पंगरियों में पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई, गांव के बासियों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ खवातीन और मासूम बच्चों के साथ गांव वालों ने पंगरियों में धरना दे दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रफाकत अली अरानी। पंगरियों के नवाही गांव अमेर अली खासकली में हैदराबाद पुलिस ने मतलूब मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करते हुए औरतों और मासूम बच्चों पर तशद्दुद किया और घर मसमार कर दिए। पुलिस के मुताबिक इस गांव में रूपोश मुजरिम छुपा हुआ था, जिसे गांव वालों ने पनाह दी और फरार करवाया, जिसके बाद गांव के 9 मालूम और 12 नामालूम अफराद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब गांव उमैद अली खासकली के वासियों की हिमायत में पंगरियों के शहरियों ने आज तमाम तजारती मराकज व मार्केटें बंद कर दी। खासकली इत्तेहाद ने गाँव के वासियों के साथ पंगरियों शहर में एहतजाज करके धरना दिया। धरने के शुरका ने बताया, खत्म करे जाए पुलिस चार गिरफ्तार मजदूर अची नयो अची परे खां हैदराबाद खां अची रहियो तो वो जे अची वे मिनिमम थी थियो तो उन में असां के कहिड़ी ख़बर तो उन में काही खाबू है। और इंक्वायरी की जाए कि अगर ये कसूरवार है खासकर बिरादरी तो उनको जो है सजा दी जाए। अगर ये कसूरवार नहीं है तो इनके क्यों जो है घर मिसमार किए गए, क्यों उनका गाँव मिसमार किया गया, क्यों उनके FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाइयां, जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफ रोड किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान में तैमूर, अब्दुल वदूद, फैजान और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। जाली दस्तावेजात पर यूक्रेन, कनाडा और सऊदी अरब जाने की कोशिश की गई। FIA ने तफ्तीश का दायरा कर बढ़ाते हुए मुलविस एजेंटों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना था कि जाली दस्तावेजात बनाने में मुलविस एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अहम खबर आपको दें कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। तायनाती वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की बाहमी मुशावरत से की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा हुसैन खान से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। राजा रियाज का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तफाक हो गया है और वज़ीर आज़म ने इस फैसले पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में जरा आपको बताता चलूं कि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। काकड़ साहब कायमा कमेटी बराए समुद्र पर पाकिस्तानी के चेयरमैन होने के साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस, टेक्नोलॉजी, खजाना और अमूर खारजा के रुकन भी थे। दूसरी जानब आपको ये बताते चलूंगा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी दे दी है। हमारे सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मंजूरी दी है। जी ठीक है, हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा हुसैन खान हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। CBD पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए। तकरीब में कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की शिरकत हुई। डायरेक्टर मार्केटिंग CBD पंजाब वसीम सदीक, डायरेक्टर एडमन LDA राबिया रियासत ने मुआहदे पर दस्तखत किए। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने मुआहदे की दस्तखत शुदा दस्तावेजात का तबादला किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि CBD पंजाब और LDA अपने तरक्याती और दीगर मंसूबों पर मिलकर काम करेगा। CBD और LDA अपने मंसूबे में एक दूसरे के मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत से शहर की तरक्की की नई राहें हमवार होंगी।
शहर में बेहतर सरमायाकारी के मौके फ्राहम होंगे। CCO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि इस मुआहदे से लाहौर की तरक्की के नए बाब का आगाज हुआ है। बेहतर मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अंदरून और बैरून मुल्क रोड शो और एक्सपोज का एहतमाम किया जाएगा। एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल, चीफ इंजीनियर इसरार सईद, डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान, डायरेक्टर एक्शन राहिल भट्ट ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्ट्रैक्ट पर 35,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी की मुस्तकिली एहसास में तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की थी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास ने वजीर सेहत का इस्तकबाल किया। शुरा का कहना था कि जिंदगी में रिस्क आए बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। डॉक्टर्स कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। डॉक्टर्स कम्युनिटी की सरबुलंदी के लिए दहशतगर्दी के मुकदमात भी भुगतते हैं। वजीर सेहत का कहना था कि महमूद अयास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीमी मेयार की बुलंदी के लिए कोशा हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पंजाब के तिबी दरसगाहों में क्वालिटी रिसर्च पर खास तवज्जो दी जा रही है। अच्छी कौमों की बुनियाद में अच्छे असासा किरदार अदा करते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिबी दरसगाहों में नुमाया मकाम हासिल है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि आज के दिन का सारा सहरा प्रोफेसर जावेद अकरम और वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास को जाता है। सेनेट और सेनेट के इजलास में पहले दिन से मस्बत पेशरफ्त रही। रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने तमाम तर कानूनी मामलात में मुआवनत की और वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास की इस कामयाबी पर खसूसी मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल वजीर सेहत ने फैकल्टी मेंबरान के हमरा जश्न आजादी का केक भी काटा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 76वें जश्न आजादी की मुनासबत से किंग एडवर्ड म्यूजिक क्लब, सोसाइटी और लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से फरमाया गया मिली नगमा भी प्ले किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत कपास के मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर डॉक्टर एहतिशाम, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स शबीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा, DG ज़राअत तौसीफ डॉक्टर अंजुम अली, DG ज़राअत पेस्ट वार्निंग राना फकीर अहमद ने शिरकत की। इफ्तिखार अली का कहना था कि इमसाल बहावलपुर डिवीजन में 21,32,000 एकड़ रकबा कपास के जेर काश्त लाया गया है। असल इंतजामी के ताउन से कपास की पैदावारी हदफ का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। इस बार रवा साल बेस्ट कपास की पैदावार के हवाले से नहायत अहम है, इसलिए ज़राअत तौसीफ का अमला बी फैक्ट्रियों में कपास की फिरती की आमद का डाटा मुरतब करेगा। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का मजीद कहना था कि कपास की पेस्ट स्काउटिंग, सर्विलेंस और निगरानी के लिए फील्ड इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाएगा। जश्न आजादी और नौजवानों का आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में शानदार तकरीबात का आगाज हुआ। पाकिस्तान के सबसे बड़े तकरीरी मुकाबले मुसव्वरी नुमाइश, पैनल डिस्कशन, मजमून नवेसी का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असहर जैदी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स शाहिद जमान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने तकरीब में शिरकत की। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। जश्न आज़ादी और नौजवानों का आलमी दिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में शानदार तकरीबात मुनक्किद की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तकरीरी मुकाबला, मुसव्वरी नुमाइश, पैनल डिस्कशन, मजमून नवेसी का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स शाहिद जमान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी ने तकरीबात का आगाज नौजवानों के साथ सरसब्ज मुस्तहकम मुस्तकबिल उन्वान पर पैनल डिस्कशन से किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने पैनल डिस्कशन की मेजबानी की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स शाहिद जमान ने कहा, मुस्तहकम मुस्तकबिल की बुनियाद सरसब्ज आलूदगी से पाक माहौल है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की कोशिश हमें अपनी ज़ात से शुरू करना होगी। इन्होंने मजीद कहा, 2 अरब से स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड कायम कर रहे हैं। यूथ अफेयर्स के तहत ई रोजगार प्रोग्राम का दायरा पंजाब भर में फैला रहे हैं। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा, पायदार और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशिशें ही वाहिद रास्ता है। तसलसल मत तोड़ें, मुसलसल
कोशिश करें, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। सरसब्ज लाहौर महफूज माहौल मुहिम का जल्द आगाज कर रहे हैं। सरसब्ज लाहौर महफूज माहौल में बुनियादी तवज्जो नौजवानों की ज़हन साजी पर दी जाएगी। हमारा मुल्क, हमारा माहौल हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इस जश्न आज़ादी पर शहर को नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रीन लाहौर वॉलंटियर फोर्स का तोहफा देंगे। इन्होंने मजीद कहा, नौजवानों की किरदार साजी और हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार हैं। लाहौर में एशिया कप 2023 की मेजबानी के लिए ज़िला इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत एशिया कप की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। पीसीबी, सिक्योरिटी और दीगर इदारों ने ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि तमाम इदारों की तैयारियों का जायजा लिया। लाहौर में एशिया कप के मैच 3 से 6 सितंबर तक खेले जाएंगे। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि मेहमान टीमों की आमद 27 अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में पहला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान 3 सितंबर को खेला जाएगा। LWMC सफाई सुथराई के लिए 355 वर्कर्स तैनात करेगी। लेस्को कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाएगी। सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि सिविल डिफेंस के एहलकार पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शायकीन को लाइनों से बचाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। SSP सलीम शाह का शहर में चंपर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दी स्पिरिट स्कूल और यूनियन पार्क सिंखार हाई स्कूल का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं जाहिद न्याज कायम खानी से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP टंडोवाला यार सैयद सलीम शाह ने चंबर शहर में वाक़ चंबर हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। SSP टंडोवाला यार ने दी स्प्रेड स्कूल चैम्बर के क्लासरूम का विजिट किया और बच्चों से तालीम के मुतालिक बातचीत की। SSP टंडोवाला यार ने यूनियन पार्क सिंगार के 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों से उनके क्लासरूम में जाकर केयर्स और काउंसलिंग के बारे में बताया और उस्ताद कराम को कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। SSP टंडोवाला यार ने चंबर हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का मिसबत इस्तेमाल करें और उस्ताद कराम को कहा कि स्कूल में असेंबली में बच्चों को मंशियात के असरात की बारे में आगाह करें और क्लासरूम में बच्चों को चेक करें। SSP टंडोवाला ने शुरुआत से बातचीत करते हुए कहा कि तालिब इल्म माशरे का सबसे अहम जुज़ है। मेरी हर तरह से कोशिश है अपनी नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाया जाए। अफसोसनाक खबर दे कि मंडी बहाउद्दीन फेक ऑनलाइन बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में 14 लाख रुपए लगाकर डॉलर कमाने का ख्वाब देखने वाले नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बहन भाई के गम और नाकाबिले बर्दाश्त सदमे से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। घर में सिर्फ मातम, वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर हो गए। मंडी बहाउद्दीन वासो के रहायशी 24 साल नौजवान अब्दुल मतीन गोराया अपने छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फेक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की जद में आ गया। अजीजों, अकारब और दोस्तों से 14 लाख जमा करके इन्वेस्टमेंट कर दी। 8 माह बाद मालूम हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की वेब पर फ्रॉड हो गया है, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर नौजवान ने मियां वहीदुद्दीन पार्क में जाकर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। बूढ़ा बाप फ्रॉड करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त लेकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।